No, I think that each service has its own pros and cons, and it is always what you want to choose. Hmm. And the fact that I didn't give my fourth attempt is answer of your question. तो मैंने Yeah, पहले ही चुन लिया था that I want to be in IPS, IPS. and the kind of acceptability, the kind of respect, the Hmm. kind of immediate results that this service gives you, because it is a very challenging service, yes. And for women, I feel that this is the service. बहुत लड़ाई करके हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों की जनरेशन के लिए पढ़ाई बहुत आसान हो गई, Very. राइट। अब स्कूल भेजने में मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दराज के इलाकों में को छोड़कर हाँ, मेजर परिवारों में अपने बेटे और बेटियों में स्कूलिंग को लेकर फर्क नहीं है। अब हाँ, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा भी पढ़ने जाए और मेरी बेटी भी पढ़ने जाए। ये जिम्मेदारी हमारी जनरेशन पे है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, ज्यादा मेहनत करें, ताकि आने वाली हमारी बेटियों और हमारी पोतियों की जनरेशन को ये जो एक जबरदस्ती का है या एक स्टीरियोटाइप है कि भाई लड़की तो ये काम कर ही नहीं सकती है, या ये तो सिर्फ काम से दे जस्ट वांट टू शर्क देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको हमेशा घर भागने की रहती है, ये तो हम्म, हमेशा छुट्टी मांगते रहती हैं। तो वो सारी चीजें आई थिंक मुझे लगता है कि हमें छोड़नी होंगी, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। She doesn't believe in using force. For her, policing means reaching out to people and helping them as a friend. She has been successful in her way of policing and has been loved in every posting from Churu to Alwar to now in Bikaner. Hello and welcome. This is Pallavi, and you are watching Indian Masterminds. Today, I am with our special guest, Ms. Tejaswini Gautam, who is currently posted as SP Bikaner. First of all, welcome, ma'am. Thank you so much for giving your time. थैंक यू। Yeah. So, I'll move to the questions for the rapid fire, but I wanted to know first that you were a student of law who used to do street plays on women's right and awareness, and became an IPS officer. So, how did that happen? Actually, when I was in third standard, my father introduced me to the concept of civil services examination, and he told me that there are, so many services that you can opt for once you clear this examination. And since third, fourth, fifth, he used to continuously tell me about the examination, how you can be part of the system and also change it, how you can help people. So in that ways, I was always very convinced about the fact that I had to join the bureaucracy. So Right. I was immediately after my graduation, I started preparing for the exam, and I did my graduation in political science honors from Lady Shri Ram College. Yeah. And then I started my side by side, I was doing my law from Delhi University, Campus Law Center, and I was preparing for the exams. And the first time I got into the IPS, and I gave the exam three times, and all three times it just so happened that luck just had it for me that I was getting IPS only as my preferred service. Right. I was getting a rank in which IPS was allotted to me. Mhm. So I continued with this service, and I think that theater was my first love. So it's not that how come you were doing theater and then you got into the service. I always wanted to get into the service, but since I like doing theater, it's my hobby, it's my passion. So I got theater involved into my bureaucratic space also in my workspace. And so I wanted to just intertwine the two concepts, the two loves of my life. One is my job, and one is the other was theater. So it happened that ways. Yeah. So I think तो when you were I think you were training like district training वगैरह में तो you had a team of few constables also and you were doing street plays. Now that you are SP and you are bombarded with so many work, are you still able to do that street plays for any campaign or something? Yes. I am not involved myself in it. Hmm. I was till my ASP ship. We did my team is still doing it in Ajmer and Jaipur, where I made those teams. They are still performing on social issues, drug abuse and women's issues and other issues of social causes.
But right now, because I am SP of districts, so I myself am not involved in performing per se, but I have my team and they are performing, and I am monitoring what all they are doing, and we are trying to reach out to more and more people through various initiatives. So street play, performing street play on social causes is one of them. We are also into a campaign called Savdhan, which Yeah. is on social issues, on heinous crime and negligent behavior on social media. And I'm also reaching out to more and more people in my district through eJan Sunwai, which is an online platform to speak to your SP, give suggestions, or if you have any complaint, then I myself talk to them on social media, on video conferencing. Yeah, I read about that, and I think I did a story on Savdhan also. Those are actually great initiatives, and it is actually generating results. So before talking about your work, I wanted to know, जैसे आपने बोला कि 3 times you gave the exam and every time you got IBS. और अभी तो बहुत टाइम हो गया, you served as an SP in 3 districts, काफी बहुत सारे challenges भी you faced during Corona. You were in Churu. So now, after so many years of service as an IPS officer, if given a chance, will you trade IPS for IAS, or no, you are satisfied with what this job is offering you? No, I think that each service has its own pros and cons, and it is always what you want to choose. Hmm. And the fact that I didn't give my fourth attempt is answer of your question. तो मैंने पहले ही चुन लिया था that I want to be in IPS. IPS. And the kind of acceptability, the kind of respect, the Hmm. kind of immediate results that this service gives you, because it is a very challenging service, yes. And for women, I feel that this is the service, because you get so much loved and liked, because a woman in uniform is still a rare phenomena in our country. So whenever you're on the street, you are more respected. People want more and more women police officers. They want more and more women to join the uniform forces, because that's how we are trained, right? ऐसा लगता है कि भाई एक महिला होगी तो ज्यादा अप्रोचेबल है बात करने के लिए. I think trust factor भी comes in. फैक्टर भी है, बिल्कुल. और मुझे लगता है कि जितनी इमीडिएटली हम लोगों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं, एंड स्पेशली बिकॉज हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ डील करें जो स्ट्रेस में हैं, जो किसी दुख में हैं या किसी परेशानी में हैं. तो एक हमारी जॉब है जो सिर्फ परेशान लोगों से ही डील करती है. तो वो भी बात सही है कि हम सबको संतुष्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो हो नहीं पाता, क्योंकि दोनों ही पार्टीज में से एक पार्टी तो गलत होगी ही. तो दोनों को लगता है कि पुलिस ने हमारे साथ गलत किया. एक को लगेगा हमेशा 50% रेट, सक्सेस रेट हमारा 50% ही रहेगा हमेशा. बट आई थिंक इवन स्टिल जो जेन्युइन पर्सन इन नीड है उसको इमीडिएटली लीगल रिलीफ दिलाने में जो पुलिस सर्विस अपना दे सकती है योगदान, वो किसी और सर्विस के पास शायद वो पावर नहीं है. और साथ ही साथ क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं बहुत सारी चीजों में, हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स relief you can give to the victim, Exactly. the complainant, Yes. whoever it is. Also, ma'am, you just pointed out कि लोग चाहते हैं that more and more women come into police services. तो एक advice अगर आपको देनी हो to all the women who aspires to not only to be an IPS officer but in police per se, तो क्या एक advice you would like to give them? आई थिंक मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी, और मैं ये बोलूंगी खुद के एग्जाम्पल से भी, कि हम लोग एक अभी ट्रांजिशन फेज में हैं. तो हम लोग एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें इक्वालिटी चाहिए. हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए पुरुषों के साथ, हमें इक्वालिटी चाहिए. तो अगर हम इक्वालिटी के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीजें अभी हमें झेलनी भी पड़ेंगी. जैसे मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारी माताओं और दादियों की जनरेशन ने बहुत लड़ाई करके हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों की जनरेशन के लिए पढ़ाई बहुत आसान हो गई, राइट? अब स्कूल भेजने में मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दराज के इलाकों में को छोड़कर मेजर परिवारों में अपने बेटे और बेटियों में स्कूलिंग को लेकर फर्क नहीं है. अब हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा भी पढ़ने जाए और मेरी बेटी भी पढ़ने जाए. तो ये लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, तब ये इतनी आसानी से हमको मिला है, हमारी बेटियों को मिला है. और अगर हम
प्रोफेशनल फील्ड्स में, चाहे हम जिस भी फील्ड में हो, आप तो पुलिस की बात कर रहे हो, मैं आप जिस फील्ड में हो, मीडिया हो, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, विच एवर फील्ड यू आर इन, इफ यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन यू विल बी टैग्ड एंड यू विल बी टर्म्ड एज के निकम्मे हैं, हम्म। बिकॉज पीपल डोंट वांट टू सी, क्योंकि वो एक नॉर्मल फिनोमिना नहीं है ना। लड़कियां या औरतें कभी भी अभी तक प्रोफेशनल फील्ड्स में बड़े ओहदों पर नहीं देखी गई हैं। वो एक नई चीज है लोगों के लिए। तो राइट। वो अगर ये जिम्मेदारी हमारी जनरेशन पे है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें, ज्यादा मेहनत करें, ताकि आने वाली हमारी बेटियों और हमारी पोतियों की जनरेशन को ये जो एक जबरदस्ती का है या एक स्टीरियोटाइप है कि भाई लड़की तो ये काम कर ही नहीं सकती है, या ये तो सिर्फ काम से दे जस्ट वांट टू शर्क देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको हमेशा घर भागने की रहती है, ये तो हमेशा छुट्टी मांगते रहती हैं। तो वो सारी चीजें आई थिंक मुझे लगता है कि हमें छोड़नी होंगी, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टू द एक्सटेंट दैट हमें कभी कभी फील भी होगा कि यार मेरा जो मेल काउंटर पार्ट है वो तो एक्स टाइम्स काम कर रहा है और मुझे 3x टाइम्स काम करना पड़ रहा है। बट आई थिंक दैट इज ओनली अ ट्रांजिशन फेज, जो हमारी मम्मियों की जनरेशन को जैसे पढ़ाई के लिए फेस करना पड़ा, तो हमें प्रोफेशनल फील्ड्स में करना पड़ रहा है। बट आई थिंक अगर आपको इक्वालिटी की तरफ जाना है तो ज्यादा मेहनत हमारी इस जनरेशन को करनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो आपका मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हो, एनी फील्ड, टीचिंग हो, एनीथिंग, एनी फील्ड। राइट। तो वी कैन से कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन को डबल शिफ्ट कर करके नहीं बताना पड़े कि हम एफिशिएंट है, तो वी नाउ दिस इज द टाइम वी नीड टू डू द ट्रिपल शिफ्ट और बी इन द ट्रिपल रोल्स। आई थिंक या यू वर राइट। ऑल्सो मैम, एक और चीज अबाउट पुलिसिंग आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपका एक इमेज होगा दैट आईएएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड ऑल, आईपीएस की भी, और जब आप सिलेक्ट हुए होगे, व्हाट वाज the 3-4 major learnings, or you can say major कुछ एक ऐसी चीज है जो आपने जब आईपीएस की ट्रेनिंग शुरू की या आईपीएस सर्विसेज में आए तो आपका वो मिथ ब्रेक हुआ, दैट यू फेल्ट कि आईपीएस इज अबाउट दिस, बट नो, दिस इजंट इट, देयर इज मोर टू दैट। तो वर देयर 3-4 थिंग्स? एक्चुअली हम लोगों को हमेशा ही लगता है कि पुलिस वाले सिर्फ चोर पकड़ते हैं, तो हम लोग क्या है वो सिंघम और ये सारी मूवीज देखकर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग या इस तरीके से मतलब एकदम पुशअप करने वाले लड़के और यही सब चाहिए होते हैं पुलिस में। तो मुझे यहाँ आके ऐसा पता चला कि पुलिसिंग इज जस्ट अबाउट कॉमन सेंस, इट्स मोर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, एंड आपका एक बहुत ही सिस्टम चार्टर है, उस चार्टर से बाहर आप काम कर ही नहीं सकते। तो आपका जो लॉज हैं, जो स्टैट्यूटरी लॉज, संविधान, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारे लॉज, इसके बाहर आप काम कर ही नहीं सकते हो। तो वो जो हम पिक्चरों में देखते हैं या एक इमेज बना लेते हैं पुलिस की, तो वो बिल्कुल गलत है। पुलिस वैसा बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और एक मिथ तो हमेशा यही ब्रेक हुआ कि वो हर पिक्चर में ये दिखाते हैं पुलिस सबसे एंड में आती है, तो हाँ। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस पुलिस सबसे पहले पहुंचती है और बहुत काम करती है, दिन रात काम करती है। और एक मिथ मेरा ये ब्रेक जरूर हुआ कि पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। राइट। किसी भी स्टेट में हम चले जाएं, इट्स नॉट ओनली अबाउट राजस्थान वेयर आई एम वर्किंग, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट अ पुलिसमैन इज लिविंग इन, उसकी घर की कंडीशन हो, या उसकी सैलरीज हो, या उसकी वर्किंग आवर्स हो, या उसका मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल हेल्थ हो, घर की परेशानियां हो, तो वो बहुत ही एक स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में रहता है या रहती है। और वो चीज हमें कभी दिखती नहीं है, क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बट मैं आपके माध्यम से आपके जितने भी लिसनर्स हैं या जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को या इंटरव्यू को, उनको जरूर ये कहूंगी कि आप एक दिन किसी भी एक पुलिस कांस्टेबल या एसएचओ के साथ बिताकर देखिए। आप देखिए कि उनका रूटीन क्या है 24 घंटे का, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, दैट इट इज नॉट, वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर मोर देन 18 आवर्स अ डे। सो ऑब्वियसली आदमी झिझक जाएगा, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, अपने घर परिवार वालों से उसका मिलना नहीं होता, उसकी छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं अगर कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर उसके जिले में हो जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी उसके साथ होती हैं जो वो कांस्टेंट मेंटल प्रेशर में और स्ट्रेस में रहता है। तो आई थिंक, और ये मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप कभी भी आप जा रहे हो गाड़ी में बैठकर या कहीं पे भी आपको पुलिस वाले दिखें, आप उनको उनकी तरफ सिर्फ एक स्माइल पास कर दीजिए। तो आप जब उनकी तरफ स्माइल करते हैं ना, तो उनको अगले एक हफ्ते के लिए एनर्जी मिल जाती है। ओके। हमें गालियां खाने की इतनी आदत हो गई है
एवरीबडी जस्ट सेज कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, पुलिस गंदी है, ये है। बट लोग ये नहीं समझते कि अगर दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं हम्म। तो पुलिसिंग में भी होंगे। हम कोई मार्स या यूरेनस से तो एयर ड्रॉप नहीं हुए ना, हम भी तो इसी अर्थ, इसी सोसाइटी के हिस्सा थे। कल तक हम लोग आपके पास थे, आज हम वर्दी पहनने लग गए क्योंकि हम सेलेक्ट हो गए इसमें, हमने ट्रेनिंग कर ली। लेकिन माइंडसेट एकदम से चेंज नहीं होता। तो हम्म। हमें इंसान समझकर थोड़ा सा अगर आप समझने लगे, ऑफ कोर्स वी हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वी अडॉर्न द यूनिफॉर्म, और उस हम्म। यूनिफॉर्म की और लॉ की रिस्पेक्ट हमें करनी है। लेकिन एक ह्यूमन तत्व जो पुलिस में है, पुलिस हर पुलिस वाले में है या पुलिस वाली में है, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक वो मिथ जो है ना वो तोड़ना होगा, और पुलिस को एज अ ह्यूमन भी एक्सेप्ट करना होगा। और डेफिनेटली जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो तो हम निभाने के लिए तैयार हैं हमेशा। सिंस आई थिंक बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रही हैं पुलिस की तरफ से टू आउटरीच टू द पब्लिक, बट मुझे लगता है पब्लिक की भी बारी है कि दे शो सम एम्पैथी टुवर्ड्स द पुलिस पर्सनल एज वेल। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी द टाइम। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पल्लवी, थैंक यू।